So one money rule that you have broken and that has actually worked for you. Entire my salary I am investing in SIP. आप ऐसा क्या पॉलिसी चेंज लाना चाहोगे स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड फीमेल एम्पावरमेंट? मेल के लिए अलग लिमिट हो सकता है, फीमेल के लिए अलग लिमिट कर सकते हैं. मे भी ऐसा बता सकते हैं कि फर्स्ट 25 लाख रुपीज इट इज फ्री. सो वी अर्न द मनी बट वी नेवर ओन दिस. दिस इज माई मनी. स्कूल एंड कॉलेजेस में अकाउंटिंग सिखाते हैं, टैक्सेशन सिखाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं. एवरीथिंग इज इन थियोरी, बट यही चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है. वन आउटडेटेड रूल दैट द सोसाइटी स्टिल टीचेस फीमेल्स, but you would be very happy to break on this podcast. Do everything by your own. Don't wait for anyone. आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? अ ड्रीम वेकेशन, अपना खुद का घर, या फिर द पावर टू ग्रो योर मनी? फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. लेकिन जब बात फीमेल्स की आती है, इट इज़ नॉट जस्ट अ चॉइस, इट इज़ एन एब्सोल्युटली नेसेसिटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज द रियल ट्रूथ इज व्हेन अ वुमन ओन्स her wealth, she doesn't just live. She rules her story. She changes her life, her decisions, and her destiny. 2025 तो चला गया, but 2026, this is the time to flip the script. Hey everyone, welcome back to the Shriram Stories, and today we are diving into a very powerful conversation, and to talk about it with real insights, I am joined by someone whom I deeply admire. She's the head of business intelligence at Gujarat University. She has published more than 130 plus research papers, written 30 books, and delivered more than 250 plus expert sessions. She has received the Best Research Paper Award 23 times, along with the Jewel of India Award and the National Education Award, and many more. Please welcome Professor Dr. Mamta Brahmbhatt. Namaste. Good morning. Good morning, ma'am. Let's start with something that has always puzzled me. India में almost 45% of the females working professionals है. बिजनेस हैंडल कर रही है, टीम्स मैनेज कर रही है, एंड टाइमली डेडलाइंस भी मीट कर रही है. बट एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद दैट करियर बहुत ही ब्यूटीफुली अपना घर भी मैनेज कर रही है. Agreed. बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, out of the total investors in India, only 25% of the females are investing, which the ratio is 1:4. So why do these highly qualified females still feel unsure when it comes to money and investments? I think let us talk very honestly, and if I'll narrate my observation, then I can say that ki from years, females are told that this money management, managing vitamin M, it is not your cup of tea. It would be a very complicated task. So from I think that conditioning is done in that manner that when I'm saying that ki investment is dropping or female are not investing, I think that it is not because of they are not able. The ability is not the issue. I think they are quite capable, confident, intelligent also, but the conditioning, the way they have bringing is done, I think that conditioning is the problem here. And when people are told that कि okay, will manage, give thing to your brother, later on your husband will manage, there are advisor, there are consultant, they will manage. So this conditioning, I think it is a problem for female. Along with that pressure and conditioning, I think all three together is creating a mindset for the women that okay, let me ask someone for investment. अब जब हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स हैप्पीली स्पेंड 40 minutes 1 hour ऑन स्क्रोलिंग वेरियस एप्लीकेशंस. लाइक अगर उनको कुछ भी परचेज करना है, लेट्स से फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, 4 अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके दे वुड हैप्पीली स्क्रोल के कौन सा प्रोडक्ट मुझे कहाँ सस्ता मिल रहा है. वेरी स्ट्रैटेजिक फीमेल का माइंडसेट है. बट वही फीमेल्स को अगर आप बोलो कि 40 minutes सिट, एक महीने में 40 minutes बैठो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करो, क्वेश्चन करो, तो वहाँ वो नहीं होता है. Because they are not actively participating. Agreed. Yet in India, we have Indra Nooyi, we have Radhika Gupta, Nirmala Sitharaman, जो ग्लोबल कंपनीज के साथ साथ इंडिया का बजट भी मैनेज कर रहे हैं. तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम कैसे ये फीमेल्स को एनकरेज कर सकते हैं मोर लीडरशिप रोल्स लेने के लिए, फॉर स्टैंडिंग टॉल इन फ्रंट ऑफ इवन द मेल मेंबर्स एंड हैविंग देयर वॉइस. कैसे उनको एनकरेज कर सकते हैं? So I think asking without I think hesitation, that could be a key. So you start in asking things. So we earn the money, but we never own this.
दिस इज माई मनी, सो मेरा पैसा कहाँ है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन से प्रोडक्ट में किया है, कौन से बैंक में है, कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है, वॉट माई गोल्स आर सेटिस्फाइड, मेरे को मेरी बेटी की शादी में 3 करोड़ खर्च करना है तो ये गोल है, किस तरह से मीट करना है. सो ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए. सो आई थिंक asking the questions without any hesitation could be the key. Second thing, I think we can start with basics. So learning the basic finance, I think it is easy. You should know the difference between investment and saving. बोरिंग कहाँ से करना है, कितना % इन्वेस्टमेंट है. सो वी एट वेल्थ केयर वी आर नॉट टीचिंग फीमेल दैट यू नीड टू डू स्टॉक मार्केट रिव्यू एवरी डे, वॉट कलर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन टर्मिनल. आपको नहीं समझना, इट्स ओके, नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, बट बेसिक थिंग तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर मैंने SIP 5,000 का किया है, 5 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं. मेरा जो गोल है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा. सो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंस की, आई थिंक वो मुझे हर एक फीमेल में करना है. थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार, वी कैन डू इट. So involvement, participation from female is required. So we do lot of corporate social responsibility seminar at our place, and we invite only female. तो ये हम फीमेल्स की, वर्किंग विमेंस की बात करें. नाउ लेट्स शिफ्ट द लेंसेज टुवर्ड्स जेनजीज. 2021 में वुमेन डीमैट अकाउंट्स फॉर जेनजी स्पेशली 7 मिलियन थे, एंड टुडे इट इज 27 मिलियन. इट्स अ ह्यूज नंबर, ह्यूज शिफ्ट. So this means that Gen Zs are interested, they want to invest, they want to participate. But Gen Zs are completely different when it comes to investing. Yes. They are not like millennials or baby boomers. So Gen Zs का nature कैसा होता है ना, they want 15-second reels, 10-minute delivery, or maybe one single click payments. तो हम Gen Zs में ये long term investing कैसे relevant बना सकते हैं? Because for them it is simple, it is boring, it is not enthusiastic. तो ये long term investing का concept हम Gen Zs में कैसे incorporate कर सकते हैं? So I think from college education, we can make them financially aware. We can do a lot of seminar. So I think the companies dealing with this kind of a generation, they need to engage them on through social media. So if they are able to connect, engage this generation on social media, I think they will start investing. And again, from early age, give them a decision making, a small decision making task. So for investment also, अगर हम उनको बता रहे हैं कि okay, you will invest in this commodity, ये तुम्हारा benefit है, इतना cost होने वाला है, so give them freedom. The most important thing for this generation, they want everything by their own. They don't like advice. हम उनको बहुत कुछ बताते हैं, तो हमें उनको empower करना है कि अपने आप से करो. खाली एक रास्ता दिखाना है कि तुम ऐसा कर सकते हो, फिर वो अपने आप से बहुत कुछ कर लेंगे. So give them freedom, independent बनाओ अपने आप से, and connect them through social media. I think they will be able to do the thing that we wanted, that we planned for them. So इसके थ्रू बाय कनेक्टिंग एंड गिविंग देम फ्रीडम एंड एंथुजियाज्म, हम मे बी उनको ये सिखा सकते हैं कि इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, एंड पेशेंस इज अ सुपर पावर, which results you will see after a good amount of time that you invest. So अभी like you said कि Gen Zs के लिए सब कुछ सोशल मीडिया वैलिडेशन जरूरी, फर्स्ट सैलरी हो गई, फर्स्ट अलाउंस हो गया, फर्स्ट इंटर्नशिप हो गया. इफ इट्स नॉट फॉर द ग्राम, दे डोंट गिव अ डैम. तो इन्वेस्टिंग वहाँ, मतलब अगर हमको इन्वेस्टिंग का कल्चर स्टार्ट करना है अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे, अगर हमको एज अ कल्चर सेंजीज में ये अर्ली मनी हैबिट्स इन्वेस्ट करवाना है उनसे, कि यू नो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ वेरी स्मॉल एज. सो हम कैसे उनको ये रेलेवेंस फील करवा सकते हैं? 500 रुपीज़ की SIP भी उतनी ही कूल है जितना एक न्यू कैफे विजिट करना. Yes, we can do it. So when we have started this targeting this generation, so the first seminar that we have done, it is in my gym. Okay. So we have I think around 24 this generation people we have gathered at gym, and then हमने उनको बताया कि आपको अगर आपका वजन बढ़ाना है कि कम करना है, इट इज़ टेकिंग टाइम. ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं है कि जादू की एक छड़ी लगाई और तुम हो जाता है. थिंग्स आर नॉट डन ओवरनाइट, यू हैव टू वेट, एंड वो वेट जो करना है वो पेशेंटली करना है, आराम से करना है, ये चीज़ भी हो जाएगी. आपने एक सेमिनार भी करा था बीच में, फाइनेंस फॉर एवरीवन, लास्ट ईयर. व्हाट वाज द कोर आइडिया? क्यों स्टार्ट किया था आपने वो सेमिनार? वो एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
कुछ फाइनेंस के रिलेटेड करना है। सो पीएम भी बता रहे हैं बहुत कि हम बच्चों को अर्ली एज में फाइनेंशियली अवेयर करना है। सो दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस इज देयर, बट व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ डूइंग द फॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजंस, आई थिंक a girl child they step back. So that seminar core theme is that ki when you are able to manage everything, when it is a committee matter or it is a house, you are managing your household, your budget, festival, everything you are managing. So when it is a matter of formal financial decision, why you are moving back? So that was a major theme कि कुछ भी हो formal financial decision अगर आपको लेना है तो how can you go ahead? So that was the theme. For So that we how have done. many females participated? They're all female of my department. So around I think 546 female. 546. Yeah. Let's say कि हम स्कूल एंड कॉलेजेस में अकाउंटिंग सिखाते हैं, टैक्सेशन सिखाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं, एवरीथिंग इज इन थ्योरी, बट यही चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इज व्हाट आई फील। Yes. लेट्स से अगर हम किसी को बोले कि अपना टैक्स फाइलिंग खुद करना है, या फिर या तो वो उसको डिले करेंगे या फिर वो किसी और से करवाएंगे, तो जो हम एजुकेशन में एज अ थ्योरी पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? हाँ, बिकॉज अभी तक हमने जब भी पढ़ाया है हम थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्या है वो बच्चों को कभी हम सोचने के लिए बताते ही नहीं है। अगर उनको डीडीएम क्लास में पढ़ा रहे हैं कि डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी ये होता है, हम बच्चों को बताते हैं कि इस बार आपका जो एग्जाम का फी होगा उसका डीडी आपको खुद को कराना है। सो द थिंग विच वी आर टीचिंग इन द क्लास वी आर इम्प्लीमेंटिंग, सो व्हाट वे द मैनेजरियल एप्लीकेशंस आर एसोसिएटेड। सो रादर देन टीचिंग ऑल थियोरी, we try to make it so practical. Now I'm giving you a hypothetical situation. Let's say if you get 2 minutes to talk to the finance minister, आप ऐसा क्या पॉलिसी चेंज लाना चाहोगे स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड फीमेल एम्पावरमेंट? मुझे लग रहा है कि इन इंडिया टैक्स ब्रैकेट इज कॉमन फॉर मेल एंड फीमेल। क्लियर? सो फर्स्ट 12 लाख रुपीज फ्री है कि जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगेगा। आई थिंक दिस लिमिट शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, डिफरेंस शुड बी देयर। मेल के लिए अलग लिमिट हो सकता है, फीमेल के लिए अलग लिमिट कर सकते हैं। मे बी ऐसा बता सकते हैं कि फर्स्ट 25 लाख रुपीज इट इज फ्री। आई थिंक दैट वे वी कैन ब्रिंग चेंज। So do you think it would help in the financial empowerment? हाँ, it definitely will help. तो आपने जैसे अपब्रिंगिंग की या हाउ वी आर रेज्ड की उसकी बात करिए, तो आई अग्री दैट दिस अपब्रिंगिंग बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो जाए। लेट्स से अभी तो हम वर्किंग फीमेल्स की बात कर रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलेज गोइंग गर्ल्स, कॉलेजेस में एवरी ईयर फेस्टिवल्स होते हैं, एनुअल फेस्ट हो गए या फिर एनुअल फंक्शंस हो गए, जिसमें बहुत सारी कमिटीज है, इवेंट मैनेजमेंट कमिटी है या फिर स्पॉन्सरशिप कमेटी है, जिसमें बहुत सारी फीमेल्स इन अ गुड नंबर दे टेक पार्ट, जहाँ पे एंड स्पॉन्सरशिप कमिटी में यू हैव टू गो आउट इन द मार्केट, पिच एंड देन ब्रिंग स्पॉन्सरशिप, एंड जिसका बजट ऑलरेडी लैक्स में रन करता है। एग्रीड। ऑन द अदर साइड यू आस्क देम कि 500 या 1000 रुपीज़ की SIP भी है उनके पास, तो द आंसर वुड बी नो। तो जब पैसों को एज अ कमिटी हैंडल करना है, फीमेल्स आर कॉन्फिडेंट, बट वही चीज़ अगर उनको इंडिपेंडेंटली सोलली हैंडल करनी है, द आंसर वुड बी अ बिग नो। सो अभी हम जो ये परमिशन माइंडसेट की बात कर रहे हैं, आई वांट टू नो कि हम वो शिफ्ट सोसाइटी में कैसे ला सकते हैं वेयर अ फीमेल परमिशन माइंडसेट से पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप माइंडसेट में जाए, जहाँ पे यू आर नॉट कम्पीटिंग विद द अदर पर्सन इन योर फैमिली, बट हम उनके साथ एक +1 होके कैसे स्टैंड कर सकते हैं। सो हम फीमेली हम अपने बच्चों को ऐसा सिखा सकते हैं। सो बेटियों को नहीं, इवन हम अपने बच्चों को भी, बेटों को भी सिखा सकते हैं कि कल परसों जब तुम्हारी शादी होगी तो इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो बर्तन धो रही है तो तुम पोंछ के लगा देना। सो ऐसा माइंड सेट से मुझे लग रहा है हर एक को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो मेल फीमेल दोनों अगर ये जनरेशन से स्टार्ट करेंगे, सो उनको पता चल जाएगा कि फाइनेंस जो डिसीजन है वो परमिशन लेने की बात ही नहीं है। इट इज़ अ जॉइंट डिसीजन, इट इज़ अ शेयर्ड डिसीजन। दिस डिसीजन इट इज़ नॉट मेल ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट फीमेल ओरिएंटेड, इट इज़ आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो छोटे हैं तब से बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि लड़कियां ऐसे ही करते हैं, लड़के ऐसे ही करते हैं। लड़कियों का काम किचन का है, लड़कों का काम इन्वेस्टमेंट का है, मनी मैटर का है। सो ये जो माइंड सेट है हम लोग नहीं सेट करेंगे तो कौन करेगा? सो आई थिंक दिस नीड टू ब्रेक। Very well said, very well said. So I am very curious now to know what is the story on your side of the table, and you have clearly made that shift. आप household भी manage कर रहे हैं, budgets manage कर रहे हैं, you are into this education sector where you have done a phenomenal job.
So what was that turning point in your life जब आपने decide किया no I want to do something on my own, I want to start my independent journey? वो realization कब हुआ? वो रियलाइजेशन तो मुझे लग रहा है जब मैंने एमबीए फाइनेंस किया तब से मेरे पास था ही वो रियलाइजेशन, बट उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। एंड दैट टाइम आई थिंक कि मनी मैनेजमेंट करना वो मनी आए उसके बाद ही कर सकता है। सो बिजनेस स्टार्ट किया और फिर मुझे लगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि रादर देन जस्ट साइनिंग द डॉक्यूमेंट देयर मस्ट बी माई वॉइस इन ऑल डिसीजंस। सो मेरी कंपनी में भी हम बात जब भी कर रहे हैं तो when wealth care is involved in any financial decision कि आगे नया कुछ लेके जाना है, नया ऑफिस लेना है, सेकेंड ऑफिस करना है, कॉन्फ्रेंस का रूम बनाना है, so for all this small decision my husband is discussing with us. So I think because of that participative approach I am handling many things at my own. So husband mindset has played a important role in my Along with journey. husband mindset, family का environment and family का atmosphere Yes, where agree. irrespective of whether it's a girl or a boy, both should have equal participation in the financial decisions ले लिया है, कोई भी joint family decisions हो गए. So if you'll come and see my nameplate at my house, so it is written Mamta and Jay Desai. So Mamta Jay Desai ऐसे नहीं लिखा है, तो my husband is not want to say that कि तुम्हारे पीछे मेरा नाम है. It is and Mamta and Jay Desai. It's two individuals Yeah, two individuals as a powerful together as a couple. powerful couple. Perfect. So how are your investments? आप कैसे invest करते हैं? So investment, I think for me, with MBA finance, I have learned that ki FD is not the investment that I require. The gold, clear. So then I have started investing very smartly. At very early age, we have started like कि SIP होना ही चाहिए. So systematic investment plan is there. So people, I think if you see the female mentality, then female they save. पेपर के नीचे, अपने ड्रेस के अंदर, कहीं ना कहीं डब्बों में वो सब रख देती है और ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे. नरेंद्र मोदी ने जब भी वो नोटबंदी किया और सारे पैसे निकला और पता चला कि कितना सारा वो सेव कर रहे हैं, अगर इसको सालों तक इन्वेस्ट किया होता तो वो डबल हो जाता. सो आई थिंक मेरे लिए वो सेविंग करना वहाँ नहीं है. आई डू इन्वेस्ट लॉट इन SIP, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं. सो आई इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव एंड कमोडिटीज. सो माई पोर्टफोलियो स्लाइटली डिफरेंट दैट आई डोंट इन्वेस्ट इन FD एंड गोल्ड. या बिकॉज अगर हम इन्वेस्टमेंट लेट से अगर आपने बात करी ना कि थोड़ी थोड़े कैश हर जगह सेव है, बाय नॉट इन्वेस्टिंग आप खुद एक रिस्क ले रहे हो. रिस्क ले रहे हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन. सो योर मनी इज नॉट गोइंग टू ग्रो इफ इट्स केप्ट आइडल. यू नीड टू डिसाइड एवेन्यूज जहां आपको वो मनी को अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट कहाँ कैसे ग्रो करना है. सो दीज डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय यू एंड योर हस्बैंड और योर I think it is a joint decision and sometimes I am predominant in deciding the things. So I justify my राशि, सी राशि. लेट्स जस्ट सम अप. हमने होम फ्रंट पे बात करी फीमेल्स के लिए, हमने एजुकेशन पे बात करी एंड कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम उनको समझा सकते हैं. हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी बात कर रहे हैं. लेट्स से अगर हम तीनों पिलर्स को कंबाइन करते हैं जहाँ पे घर पे अवेयरनेस भी है, एजुकेशन से रियल लाइफ एग्जांपल्स भी समझ आ रहे हैं एंड गवर्नमेंट का फीमेल्स को सपोर्ट भी है. अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं, देयर नो वन इज वर्किंग इन आइसोलेशन. सो आपको इंडिया में गर्ल्स का फ्यूचर क्या दिख रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन बट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, ownership and decision making? I think all the three things, if I have to rate on 1 to 5 Likert scale, then I can rate on 4.5. So future will be bright. Female will come, they'll come to the leadership style and they will accept the role. Okay, government is supporting, there is a support from house also. So I think the confidence will increase and with that confidence already female to intelligent hoti hai by born. So with that intelligence power, their ability, confidence will boost up like anything and the leadership role में वो बहुत कुछ कर सकते हैं. Perfect. So now let's just come to the last part of this podcast. एक rapid fire करते हैं where I would like to ask you few questions and just tell me whatever comes to your mind. So one money rule that you have broken and that has actually worked for you. Entire my salary I am investing in SIP. Okay. One book which every female should read. Finance for Everyone. One best and the worst financial advice that you have ever received. The worst I can say that we are not capable and from my husband I got the advice like that I can do anything
with respect to money. I think your husband is your biggest supporter. Yes. One money habit you wish you had started at 25. Start investing small. One outdated rule that the society still teaches females, but you would be very happy to break on this podcast. I think start independently, start investing, do everything by your own. Don't wait for anyone. Thank you so much, ma'am. This was a very honest, layered, and an unfiltered conversation. Thank you so much. Thank you so much. Before we just wind up, would you like to say anything to all our listeners regarding female and independence and empowerment? I think the core message I can give to all the female is that have confidence on you and start very small thing. So, thank you so much. आपने जो words बोले, I am sure many females can definitely relate to, because females के लिए एक वो first step बहुत ज़रूरी होता है, वो first initiative लेना बहुत ज़रूरी है. They have the capability, but जब तक वो first step और वो first encouragement नहीं मिलता है, I think ज़्यादा से ज़्यादा females इस journey में participate नहीं कर पाती है. So, thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. To all my lovely ladies, आप सबने वो मूवी देखी होगी, हक, राइट? डू यू रिमेंबर द लास्ट फाइनल स्पीच दैट यामी गौतम गिव्स? डू यू नो कि उनकी लाइफ ओवरनाइट चेंज क्यों हुई है? नॉट बिकॉज कोई गलत चॉइसेस लिए थे, बट बिकॉज शी वॉज नॉट फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड. एंड दैट इज़ वाई फाइनेंशियल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है. सेविंग्स कभी भी ख़त्म हो सकती है, सपोर्ट कैन शिफ्ट एंड सर्कमस्टांसेस कैन चेंज, बट द एबिलिटी टू अर्न एंड लर्न is always going to stay with you. So learn that skill, build that skill, because that is the only security that is going to last with you forever. This is Ruchika Kothari on the Freedom Stories. Until next time, stay invested, stay empowered, and keep investing in yourself.